ਮਤਲਬ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ। نہیں 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 وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ایم کے ایس بھائی۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال چال؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک؟ السلام رحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بھائی جان بس کیا ہوا، عید ناراض ہو گئے ہیں آپ؟ سال پہلے آئے تھے۔ نہیں، میں بیٹھ کے نیچے سنتا ہی ہوں کیونکہ شور ہوتا ہے میری طرف نا، اچھا اچھا، اس لیے۔ ہاں نہیں سنتے تو جی آپ ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن یہ میرا خیال سیکنڈ چانس ہے آپ کا اوپر آنے کا۔ ہاں جی، میرا خیال دوسری دفعہ ہی آیا۔ ہاں اور بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بس ایک دفعہ آپ نے ہمیں اپنا آپ سنایا تھا اور اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے۔ بس اصل میں ہر وقت ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو اس میں بندہ سنتا ہی ہوتا ہے۔ میں نے صحیح ہے۔ ہیڈ سیٹ بھی لیا تھا لیکن وہ ہے تو وہ اچھا، لیکن پتہ نہیں میرے میں سیٹنگ شاید صحیح نہیں ہوئی، پھر بھی وہ اس کی شور آتا ہے بیک اچھا گراؤنڈ پہ، اچھا اچھا۔ لیکن ہاں صرف ٹک ٹاک پہ آتا ہے، فون میں نہیں۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی علی بھائی کدھر چلے گئے ہو؟ ادھر ہی سر میں ویڈیو ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, 5-6 ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੀ। ਖੋਲੀ ਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ की लाइव होती है तो वो सारी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੀ? ਕੁਝ نہیں۔ اچھا وہ گل یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہماری جماعت کی جو تعلیمات ہے نا، یہ جیسے ایک میں نے فطرتاً کلب آ گیا تھا نا نیچے گندی بات لکھنے والے، تو یہی ہے کہ ان کو اپنے گھر سے نکال دیں، بیٹھک سے آرام سے نکال دیں، جب وہ اچھی ਹਾਂਜੀ پوزیشن میں ہوں تو پھر ان سے بات کر لیں۔ ਹੋਣਾ ਹੀ تو ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ یہی ہم کام کرتے ہیں کہ جب کوئی بیچارہ بہکا ہوا ہو یا دنیا کے غموں میں مشغول ہو اور بھول سے ادھر آ جائے بھول کے، اور وہ اپنے ادھر کے دکھ تکلیفیں ہمیں دینی شروع کرے، تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی تو جا، تمہیں بہت چوٹیں لگی ہیں تو پہلے ان کا آرام علاج کر تو پھر آنا ہمارے پاس۔ تو بس ایسے ہی ہے۔ تو صحیح یہی جماعت کی تعلیم ہے کہ جب کوئی اخلاق سے گر جائے تو اس سے اعراض کرو۔ اور صحیح ہے، دوسری ہونا بھی صحیح ہے۔ ویسے بھی یہ یہاں پہ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ رسولوں کی اور کتابوں کی بات ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کی سماجی لینگویج کی اجازت ہونی بھی نہیں چاہیے اور اچھی بھی نہیں لگتی۔ یا تو محفل ہی ویسی ہو نا پتلو کی، مسٹر پتلو کی عدالت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو منڈی جاؤ جی خیر کے۔ جی تو جب ہم اللہ اور رسول کی باتیں لے کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے ماحول جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یا تو اپنی قربانی دے دیں یا اگلے کی لے لیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے۔ تو میں تو اپنی قربانی دے نہیں سکتا کیونکہ پوری فلائٹ اڑانی پڑے گی، ہاں جی تو پھر ایک آدھے پیسنجر کو ہی دھکا دے دیتے ہیں بھی چلو یار، بس بھی تو بچانی ہے نا پر پیسنجراں دی۔ ایسا ہی ہے، بالکل تیرا ایسا ہی ہے۔ تیرے بھی سواب مل جائے گا کہ تو 100 بندے نو بچاؤ واسطے قربانی دیتی ہے۔ ہاں جی لو جی ہوں کہڑے پائے ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। کرنا کرنا ہر چیز ریکارڈ ہے۔ میاں صاحب نے لگتا ہے
ਪਾਏ ਪੂਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अब्दुल वालेकुम भाई सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम। मियाँ साहब बरकातहू। फतेह इस्लाम साहब यार ਨੈਟ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਘਰ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਮੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਣ ਸਰਾਣੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ MKS ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਾੜਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੂਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਫਿਰ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਨੱਵਰ ਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਏ ਸਨ, ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਸ਼ਿਨਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਮਰ ਮਿਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਹਮ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ये ਅਸੀਂ ट्रुथ ਇਹ ਜੀ बेटे सफा भाई, नंबर 374 समझना चाह रहे हैं। क्या उसमें सब्जेक्ट है, थोड़ा सा गाइड कर दें। ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਸ਼ਾਰ ਦਾ। अच्छा यार, वो मैं आपको बता दूं, ये डबल टैप की टीम जो है ना, इसकी जो कैप्टन है ना, वो साड़ी बाजी चाह ली है। और जिस तरह ही लिखण ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਮਲਕ ਡਬਲ ਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਗਨਸ਼ਿਪ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बगैर चाह तो ही ਨੇਰੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੱਗਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਏ ਨੇ ਕਿ
ਯਾਦ ਧਿਆਨੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਲਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ। हाँ, नहीं यार आनी भी कम हो जाए तो क्या बात है। कोई मकसद है कि मोबाइल एक ऐसा सिस्टम बनवाओ। नहीं बनवाना वो पैना। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सही नहीं ट्रूथ ਜ਼ਾਹਿਰ भाई वो ਹੁੰਦਾ ਪੇਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ हैं भाई, ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਵੈਸੇ ਆਪ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਟੈਕ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। जी अपना ट्रुथ बीट भाई लिखे क्या, कौन सी सतर पढ़नी है, कहाँ से शुरू ਉਹ कर ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਢਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। That's it. नहीं जी ताहिर अमजद भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरी 5 लाना अपना फतेह इस्लाम भाई, आखिरी 5 लाइनें। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? जी ਆਖਰੀ अपना 5 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ 5 ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ आजज 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 ਆਜਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਆਜਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप चाल हैं जनाब? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਓਏ ਆਖਰੀ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੇ क्या ਪੜਨੀਆਂ टॉपिक ਜੇ? आज चल रहा है? ਓਏ वो ਤੇ कहते हैं ਭੈਣ वतन वालों के चेहरे पढ़ के देखो, यहाँ तारीख दोहराई गई है। सरे महफिल वफादारी के दावे, पसे दीवार साजिश हो रही है। लेकिन ताहिर साहब मेरे आप में इसका जवाब एक शेर में ना मुतवक्के करें, मेरे से इतने शेर नहीं पढ़े जाते, बट आई लव लिसनिंग शायरी, लेकिन मुझे याद नहीं होते। अच्छा चलें नासिर भाई जरा इन्हें ते समझाना है तो अपना ताहिर भाई तुसी भी। वो लिख रहे हैं कि और तू इससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, क्या हाँ मुझे अपने रब की कसम है कि ये सच है और तुम इस बात को वकूअ में आने से रोक नहीं सकते। हमने खुद इससे तेरा अक़द निकाह बांध दिया है, मेरी बातों को कोई बदला नहीं सकता और निशान देखकर मुंह फेर लेंगे और कबूल नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये कोई पक्का फरेब या पक्का जादू है। और नीचे फिर उन्होंने इनसे लिखे हैं 28, 47, 14, 2, 47, 2, 46, इस तरह करके ये 5 लाइनें हैं। तो ये है जी सारा मामला।
ठीक है। जी आप मैं काम पे हूँ तो ये बैकग्राउंड बात है ये मोहम्मदी बेगम साहिबा के बारे में। हाँ जी, वो निकाह वाला काम थे। देखिए मैंने इसी हाँ वजह से हाँ पूछा है कि इनसे पूछें कि एतराज़ क्या है। हाँ वही ना वो असल तो चीज़ ये होती है कि समझने के लिए तो अगर आपने हज़रत साहब की तहरीरात को पढ़ा है फिर तो हम उसके ऊपर बात करते उसकी डिटेल में जाते हुए अच्छे लगते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो समझने के लिए फिर आप उनकी तहरीरात को पढ़ लें, ये इश्तिहार पढ़ें, उसके अंदर जो पेश गोई है उसको पढ़ें, उसके मुतालिक जो लिखा है वो पढ़ें अगर तो समझने की नीयत है। और अगर कोई एतराज़ है तो फिर उस एतराज़ को पेश कर दें ताकि उसके मुतालिक बात की जा सके। अच्छा, वो आसमानों वाली बात है, इंसों का मतलब हाँ तो वो उसकी तफसील तो सारी बयान है कि कोई नहीं बदल सकता है, वो अपनी शराइत के साथ अगर उसके ऊपर बजिद रहेंगे तो उनको कोई नहीं बदल सकता। आखिरी उम्र तक उन्हें चैलेंज ये कि उनके खामन को कि आप तकजीब का इश्तिहार शाया करें, उन्होंने किया नहीं किया सारी दुनिया जानती है। तो जो पेश गोई अपनी शराइत के साथ शाया शुदा है वो शराइत पूरी हों तो इस बात को कोई नहीं बदल सकता, ये बात है। आप इश्तिहार और पेश गोई को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लें, उसमें तफसीलन जिक्र है सारी बात का। बिल्कुल। और दूसरी बात यह भी है कि वो आसमानों पे कहा गया तो आसमानों पे हो गया होगा, अब ज़मीन पे तो के साथ तो उसका तल्लक भी कोई नहीं था। एवं हम कहानियाँ च पे रहो। क्यों जी मियाँ साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल पक्की सही शक्की गल है। नहीं किसी ने। जी असल से अस्सलाम वालेकुम जैसा अस्सलाम क्या हाल वालेकुम, चाल ये हरूफ जबल है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ बिल्कुल। दफ़ा ये चीज़ ये है कि ये हर एक के लिए तो ये मजमून है भी नहीं है। बाज़ हमेशा जैसे कुरान करीम में अलिफ लाम मीम और इस किस्म के अल्फाज हैं, अब वो कोई बंदा बहस करने लग पड़े तो वो इसी बहस पे अड़ा रहे कि हामीम का क्या मतलब है, यासीन का क्या मतलब है। तो ये बाज़ हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की निशानदही के लिए होते हैं, वो अपने ज़माने में खुदा किसी अहले इल्म को बोलता जाता है। ये नंबर होते हैं कुरान करीम इसकी जिंदा फिर मिसाल है कि कुरान करीम की हर दूसरी सूरह है जो असूल वहाँ पे है वही अल्लाह के हर इल्हाम की तरफ रखना चाहिए। दुनिया का मैं ज़रा 10 को मिनट से हाजिर होना वापस, मैं ठीक है, एक चीज़ पिक कर लें। ठीक है। उसमें सवाल ये है आएगा कि तो ले लेना, मैं 10 मिनट बाद आके एड्रेस कर। सही। एक मज़हब के मिजाज को समझना चाहिए कि क्या होता है और उसी के हवाले से उसी तनाजुर में चीज़ों को देखना चाहिए। ये बाज़ पेशन गोइयाँ होती हैं, अल्लाह ताला के अपने इरादे होते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है और वो बेहतर जानता है कि क्या मामलात हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने इरादे ज़ाहिर करते हैं, अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो पेश करते हैं। अल्लाह ताला टाल नहीं सकती। और मैं ज़हन में क्योंकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या मिर्ज़ा साहब के बारे में बात हो रही है और अहबाब जमात ये जानते होंगे कि हुआ था कि नथिंग कैन बी डन बाय मिस्टर अब्दुल करीम, इल्हाम हुआ था। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ये तकदीर मुबरम है जो टाल नहीं सकती। तो फिर आपने मसीह मौऊद ने कहा कि मैं शिफात का हक इस्तेमाल करते हुए फिर वो दुआ करने से बाज नहीं आए। तो बज़ाहिर दो मैसेज मिले। पहला ये मिला कि एक किस्म की नाराज़ी का या मतलब सख्ती का क्या है, और फिर ये इल्हाम हुआ कि इन्ना कांतल मजाज के तुम्हें उसका मजाज कर दिया गया और उसको शिफा मिली। तो कादर है वो बारगाह जो टूटा काम बनावे, बना बनाया तोड़ दे कोई उसका भेद ना पावे। हम इस तरह जो दुनियावी लिहाज से जो बातें होती हैं कि इस तरह हमारे जो
जो हमारी स्टैंडर्ड हैं उनके मुताबिक अल्लाह ताला रिएक्ट करे या एक्ट करे तो ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह फ़ातिह इस्लाम से भाई ने बताया है, हम ओवरऑल जब इस पूरे सिनारियो का ज़िक्र करते हैं मोहम्मदी बेगम साहिबा के बारे में, और इस पर इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पहलू है जो तृष्णा रह गया हो या जिसको एड्रेस ना किया गया हो। और उसमें जो समझने वाले हैं उनके लिए यही बात काफ़ी होनी चाहिए कि मोहम्मदी बेगम साहिबा की औलाद ने अहमदियत को कबूल किया और पूरी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। ये इतनी बड़ी दलील है कि उसमें एतराज़ात जो उठते हैं उनको वो हज़म हो जाना चाहिए, कि ड्रॉप कर देना चाहिए इस चीज़ को, कि मोहम्मदी बेगम साहिबा के बारे में जो जिस तरह पेश किया जाता है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासर वो ख़ुद हुई, उनके ख़ानदान हुआ, उनकी औलाद दारुलाद, वो उन्होंने मामलात को समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अहमदियत को कबूल किया, जो कि हर इस पेशन गोई का ये मुकदमा भी यही था कि वो मज़हब से दूर थे और वो करीब आए। जज़ाकल्लाह। हाँ जी ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी भाई शुक्र मैं क्या हाल है? ठीक ठाक बेहतरीन अल्लाह का शुक्र। और वतन भाई आप सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल, ये ताहिर साहब ने बात बिल्कुल सही की है। ये जो मोहम्मदी बेगम की जो पेशगोई है, इस पे इतने क्वेश्चंस हुए हैं, इतने क्वेश्चन हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, और हर क्वेश्चन का बड़ा मुकम्मल और मुतद्दल जवाब भी दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बाद दूसरी ऐसी पेशगोइयाँ हैं जिसमें बड़ी उनके तशहीर हुई उनकी। फॉर एग्जांपल जो मेरे ज़हन में आ रही है, हज़रत मुस्लिम मौऊद अलैहिस्सलाम की जो सबज़ इश्तिहार वाली पेशगोई है, उसके बारे में कभी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन मोहम्मदी बेगम को क्वेश्चन कर कर के इसको रगड़ा दे दिया है और जवाब भी मिले हैं, लेकिन फिर भी करते जाते हैं। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर्स। तो ये मैं बस सोच रहा था इसके बारे में। ना सोचें, इसमें आपको पता है कि वजह जिन्स जो है ना वो मुज़क्कर मुअन्नस है, तो सारी बात है मुज़क्कर मुअन्नस में हमेशा इंट्रैक्शन रही है। बड़ी बड़ी दुनिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं और उनके फिर स्टोरियाँ जो हैं वो चलती हैं ना। और दूसरा मैं ये सोच रहा था कि ये जो हमारे जो नॉन अहमदी मुस्लिम्स आते हैं हमारे डिफरेंट ब्रॉड पे और सारा कुछ सेशन में और क्वेश्चन करते हैं हमें, हमारे अकायद के बारे में क्वेश्चन करते हैं, और ये होगा तो क्यों नहीं हुआ, वो होगा तो क्यों ऐसे हुआ। कभी अपने भी अकायद के बारे में आके हमसे बात करें कि इनके क्या अकायद हैं, इनको कैसे डिफेंड करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं इनसे हमेशा पूछना चाहता हूँ कि लेट्स अस्सूम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे हैं और वो कल आ जाएं या परसों आ जाएं, किस तरह ये उनको पहचानेंगे? क्या वो ऐलान करेंगे? कहाँ पे वो उतरेंगे? जो अहादीस हैं अगर उसके मुताबिक वो दमिश्क में उतरेंगे तो फिर पाकिस्तान वालों को कैसे पता चलेगा? क्या वो ऐलान करेंगे? क्या करेंगे? किस तरह मानेंगे कि यही वही हदीस है? तो इस बात मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो उनके बेसिक बिलीफ के साथ हैं, उसके कुछ आंसर वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि अगर ये ईसा आ भी जाए असूमिंग, तो अहमदी पहले होंगे जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना।
तो थोड़ा सा हमें बताएं तो सही आके अपने अकायद के बारे में भी, तो देखें क्या कब हमें जवाब मिलते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। ये आप तो इनको जी फरक भाई सर अस्सलाम भाई क्या हाल है, वालेकुम। ठीक ठाक सारे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम, ठीक है। और मैं यही पूछना चाह रहा था वतन भाई कि ईसा अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे किस तरह? क्या उनके पास बिल्कुल शनाख्ती कार्ड होगा? इनके पास तस्वीर है? क्या हाँ जी शनाख्ती कार्ड दिखाओ जरा कि हम देखें, हमारे पास भी तस्वीर पड़ी है, वो मैच करती है या नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे ख्याल है इस वक्त पैनल में सारे ही अहमदी हैं गलबन। एक और बात यह है, मतलब अगर जो कॉमन सेंस का होता है कि अगर यकीन हो, ईमान हो वाकई, और जिस तरह प्रिसाइज तरीके से वो लोकेशन जहाँ पर उनका नज़ूल होना है उसका इशारा भी मौजूद हो, उस पर यकीन हो कि वो दमिश्क की जामिया मस्जिद के पास मिनारा है उस पर उतरेंगे, तो फिर उम्मत को चाहिए कि उनके इस्तकबाल के लिए बाकायदा मनसूबा साजी हो। यहाँ जहाँ पर उतरना है उस मस्जिद को, उसके इर्द गिर्द ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस्तकबाल की तैयारियाँ होनी चाहिए, किसी वक्त भी नाज़िल हो सकते हैं, ताकि उनको मीनारे से नीचे उतरने में कोई दुश्वारी ना हो। वहाँ पर कालीन लगा दिए जाएं, हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए, और वहाँ पर जो लेटेस्ट और जो जो सबसे ज़्यादा खिदमत हो सकती है उस पर इन्वेस्ट किया जाए। उस जगह को, उस महल्ले को, उस शहर को, उस मुल्क को महफूज बनाया जाए कि यहाँ पर एक ऐसा अमल हुआ चाहता है या होना है जो जब से तारीख इंसान पैदा हुआ है और क़यामत तक ऐसा मंज़र कहीं किसी ने नहीं देखा और ना देखेगी। ये एक ऐसा यूनिक मंज़र होगा कि अल्लाह ताला का सच्चा नबी, जिनकी उम्र भी अब 2025 साल से भी ऊपर होगी, लगभग होगी, और जब उतरेंगे तो इतना ज़्यादा एक बुज़ुर्ग शख्स जो ज़िंदा आसमान से उतरेगा, और ये नहीं कि उतरते साथ ही उनको कोई इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको कुरान और हदीस सारी गवाही दे रहे हैं कि वो नबीउल्लाह है, नबीउल्लाह नबी 4 दफ़ा मुस्लिम में कहा गया, कुरान में भी बनी इसराइल का नबी कहा गया, कोई इसमें शक ही नहीं है कि वो नबी है। तो इस्तकबाल के लिए एक कमेटी बननी चाहिए और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये एक मामूली हदिया होगा अगर वाकई ये ईमान हो कि यहाँ पे उतरना है। तो अगर ये विचों पता होवे की मामलात में, तो फिर तो ऐसा ही होता ना कि सर भाई और ऐसे मजे की बात यह है कि इसमें दोनों क्रिश्चियन और मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना, दोनों इकट्ठे मिलके ये प्लान बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ताहिर भाई मैंने ये बात, ये तारुल कादरी साहब के मौलवी साहब थे, उनसे बात की थी मैंने। मैंने कहा एक तरफ आप कहते हो, कल भी वो शाह साहब आए थे तो वही ये कह रहे थे कि जी यहाँ पे बाबे लुद पे दज्जाल को कत्ल किया जाएगा, और बाबे लुद फलां जगह पर है, वो भी फ़लस्तीन के इलाके में बता रहे हैं, इसराइल के इलाके में बता रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा फिर तुम लोगों से तो बेहतर जो थे वो यहूदी थे। देखो जिन्होंने किसी का माइक खोला, मेरी आवाज़ आ रही है वापस एको। तो अच्छा, मैंने कहा ये अगर कोई आए ऊपर तो मुझे बताना, फिर मैं बात भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात मैंने उनसे ये कहा था कि तुम लोगों से बेहतर तो यहूदी थे, जिन्होंने, यानी मक्का मदीना में सबसे ज़्यादा आबाद क्यों थे, वो इसीलिए कि मैं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि बात कहते हैं कि बादशाह जो था ना, उसका भाई मारा गया किसी जंग में, कोई कहता है उसका बेटा मारा गया था जंग में, तो वो बदला ले, हमारी हर बात मानी है, हर जगह गए हैं। लेकिन ये वो जगह है जो हमारे सहीफ़ों में लिखा है कि आने वाला मऊद नबी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आएंगे, इसलिए अब हम यहाँ से तो नहीं जाएंगे, तू बदला नहीं लेना, छोड़ दे उसको। बादशाह कहते हैं कि बादशाह मजबूर हो गया, उसने कहा चलो ठीक है, और फिर उसने वो मकान भी बनाया था वहाँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में ही वो नबी आया तो मैं उसकी खिदमत करूँगा, मैं उसके पाँव धोया करूँगा। तो ये वहाँ पर ये उनको यकीन था, तो वो वहाँ उन्होंने डेरे लगा लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा यहूदी आबाद थे मदीना में। लेकिन इनको खुदा के रसूल पर ज़रा यकीन नहीं है कि अगर ये इस हदीस को सच्चा समझते हैं कि बाबे लुद पे आके उसको कत्ल करना है, तो क्यों नहीं ये साथ देने के लिए आगे चल रहे।
کہ ہاں ہم وہاں پہنچے اور مسیح کو قبول کریں گے اور اس دجال کو قتل ہوتے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ دیں گے. لیکن کیونکہ ان کی کہانیاں یہ نہیں ہیں. کہانیاں ان کی یہ ہیں کہ وہ آنے والا آئے گا, ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہونا, اس نے پھونکے مارنی ہیں, سارے کافر مر جائیں گے, پیچھے رہ گئی کہ کفریانیاں, اسی انہوں نے لٹنا ہے, تو اسی پیسے مال لے کر جانا. یہی تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہے. کہ ان کو انہوں نے تو یہ بنائی ہوئی تھی باتیں ذہنوں میں کہ آئے گا مسیح, آئے گا تو ہمیں پیسے دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا, تو یہ مجھے کس طرح قبول کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی بس کہانیاں ہی ہیں, قصوں میں بس رہی ہے قوم. تو راجہ صاحب آگے ہمارے بھائی. السلام علیکم راجہ صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم باعث محبت و اسلام. راجا ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہے. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ. ماشاءاللہ. ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ مزاج ہیں, یقین جو بات کرتے ہیں کیا اس پر ان کو یقین ہو. جب یقین ہو تو پھر اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ آپ کا منہ ہے ادھر رقم بھی ہونی چاہیے, تمنی ورزر ہوتے ہیں. تو پھر یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب اگر یہ جس طرح پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ لد کے مقام پر وہاں پر جناب عیسیٰ آ کے تو دجال کا سامنا کریں گے, اگر اس بات پر بھی یقین ہو تو کیا بندوبست کیا ہے کہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں, جو خدام ہیں, جو انصار ہیں, کم از کم انصار المسیح کو تو ادھر اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کا ایسا حفاظت کرنا چاہیے کہ کم از کم اس علاقے میں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہ کرنے والا شخص موجود نہ ہو. اس کے لیے عملی طور پر کیا کرتے ہیں. لیکن جب یہ یقین ہو کہ ہے کچھ نہیں, کہانی ہے, سٹوری کوئی نہیں, تو پھر وہ پنجابی کہندے نا, کہندے پیر تے ملانے ساڈے مک گئے نے دانے ہو گئے, احمدی دی گانے پاؤندا لٹا رہ گیا, ساڈے ختم تے تویتاں والا پٹھا بہ گیا, مہدی رڑک لیا مکھن پیچھے کھٹا رہ گیا, ساتے چالیے تے کل لوکی گئے ہن پول. مطلب حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کو جو سورس آف انکم ہے, جب وے آف لائف آپ کا بن چکا ہے, وہ جب تھریٹن ہوتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی وہ قابل قبول نہیں ہوتا. کیوں راجہ صاحب؟ صحیح فرمایا, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میں یہ بھی سوچ رہا تھا, یہ اکثر ہم جو ہمارے سے مانگتے ہیں جی احمدیت کی سچائی کی کیا نشانی ہے اور کیا ثبوت ہیں, تو کامن بندے کے لیے میں تو راجہ صاحب یا اسی کی طرح کے اور جو دوست ہیں جو احمدی ہوئے ہیں خود سٹڈی کر کے اور پڑھ کے اور سمجھ کے, میں تو ان کو پیش کر سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نشانی ہے سچائی کی. اچھا دیکھیں جب یہ احمدی ہوئے تو ان جی معذرت کے ساتھ میں 2-1 منٹ کی نا بریک لینا چاہ رہا ہوں. ایک میں نے نا اقتباس سنانا ہے. اب چونکہ کافی ہمارے مطلب کہ نان احمدی بھائی بھی آ گئے ہیں اور کافی لوگ بیٹھے ہیں, تو شاید ہماری بات کا تو اثر نہ ہو, لیکن ان کے اپنے ایک کافی مقصد ہے کہ عالم ہے, ان کے پاس دنیا دین کا کافی ہے اور کافی فین فالوئنگ ہے. تو یہ جو کچھ اس طرح کا ماحول ہر 10-15-20 دن کے بعد چلتا ہے نا, تو اس پہ انہوں نے ایک بڑا اچھا بیان دیا کل دوپہر کی ایک لائیو میں. تو میں چاہتا ہوں ذرا 2 منٹ کا سب لوگوں کو سنا دوں. جی بالکل بالکل جی. بات کر رہے ہیں لیکن آپ خود پرووک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منع کیا ہے کہ آپ انہیں گالیاں نہ دیں. میں ذرا 1 منٹ دوبارہ لگاتا ہوں, تھوڑا سا ساؤنڈ پرابلم ہے. گھنٹیاں بجاتا ہوں. آپ ان کی گستاخیوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ خود پرووک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منع کیا ہے کہ آپ انہیں گالیاں نہ دیں, ان کے بڑوں
देते हैं, आप कुरान पर क्यों नहीं चलते? आप इल्मी रद्द करें, उनके साथ इल्मी बात तकरार करें, गालियां देने का मुकाबला ना करें। हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर क्या नहीं करते? कुरान पाक ने इससे मना किया है, अहादीस में से मना किया गया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वालिदैन को कोई कैसे गाली दे सकता है? फरमाया वो दूसरे के वालिदैन को गाली देता है और दूसरे जवाब में उसके वालिदैन को गाली देते हैं, तो ऐसे है जैसे बेटे ने खुद गाली दी हो। इसलिए ये जो आप तरीका बता रहे हैं ये काबिल फख्र नहीं है, तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी सिविलाइज्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करें, इल्मी दुनिया में आए, इल्मी बात करें, कभी भी गालम गलोच बेशक मिर्जा का ऐसे न करें, ये तरीका ठीक नहीं है। नालियां देंगे आप उनकी गुस्सा। हाँ जी, ये मैंने कहा चले हम तो जब ये बात करें तो हो सकता है कि अच्छी ना लगे, लेकिन ये मौलाना मोहम्मदीन सियालवी साहब हैं, तो वो तो कम से कम इनके लिए कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं, एहतराम की हद तक। चले मसलक का इख्तलाफ तो होगा उनसे, लेकिन कम से कम ख़त्म नबूवत तक तो कोई इख्तलाफ नहीं ना, उस परचम तले तो हम एक हैं। तो फ़रो इख्तलाफ कम से कम ख़त्म नबूवत में तो नहीं है ना, तो ये उसी ज़िमन में बात हो रही है, तो उस हद तक तो उनसे इत्तेफाक करें। और ये जो हर 2 हफ्ते डेढ़ 2 हफ्ते बाद तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो जाता है, तो उससे अल्लाह ताला जान छुड़ा दे। जी प्यारे हो, जज़ाकल्लाह सुनाया रुज़ा। बाकी मैं जिथे तक देखना ना, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब तो सियालवी साहब, इन्होंने जो सियालवी साहब